Okay, so good evening, all of you. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. So we are doing back to basics quick revision of political science optional. And in today's lecture, this is the third part of political science. We are doing topic number 10, that is regionalization of world politics. In the first part, we discussed about regionalization and EU. In the second part, we discussed about NAFTA and APEC. In today, we will be discussing ASEAN, SAARC and BIMSTEC. ठीक है, स्टार्ट कर दिया सत्यम सर. हाँ. तो ASEAN Association of Southeast Asian Nations. ASEAN is the most successful model of regional integration in the third world. तो उसके मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं एक बार. म्यांमार सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट है म्यांमार, फिर थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस ऐसा ओनली एशियन कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है. फिर वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर एकदम छोटा सा सिटी स्टेट है, मलेशिया के टिप पे है, और इंडोनेशिया. तो मलाक्का के स्टेट पे 3 एशियन कंट्रीज आते हैं, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, और अंडमान निकोबार यहाँ कहीं आता है इंडिया का. The difference in approach of EU and ASEAN. EU is intrusive. EU is intrusive. It imposes a lot of conditionalities on member countries, even in domestic sphere. ASEAN follow ASEAN way. It is based on Panchashil, non-interference in domestic affairs and respect for sovereignty and territorial integrity. जैसे म्यांमार में कुछ भी धमाल हो, एशियन को इंटरफेयर नहीं करता. EU is supranational. ASEAN is international. EU has introduced qualified majority, whereas ASEAN follows consensus-based approach. Both EU and ASEAN are communities. ASEAN has not gone for single currency model. They have currency swap agreement. In one way, ASEAN is more advanced than EU. EU still does not have its charter. ASEAN has its own charter. However, both EU and ASEAN have been stabilizing forces in their regions. ठीक है, तो इनका डिफरेंस है. Comparison between ASEAN and SAARC. Both are examples of regional integration in third world. If ASEAN is the most advanced example, SAARC is worst example of regional integration. According to former Foreign Secretary S. Jaishankar, present minister, SAARC is jammed vehicle. According to C. Rajamohan, Pakistan is a camel in a caravan of SAARC which slows down the traffic. Kishore Mahobani on ASEAN, author of ASEAN Miracle. ASEAN is an example of pragmatic regionalism. Means instead of blindly imitating European Union, Asian countries developed their own model as per the situation prevailing in the region. ASEAN went for more flexible consensus-based and informal norms. ASEAN way is slower but politically viable. ASEAN never progressed in linear manner. ASEAN movement has been like a crab, but ASEAN progress is tangible. In his book, Asian Miracle, he has suggested that Southeast Asia has achieved very high degree of peace and stability. Southeast Asia is one of the most diverse region. The approximate population is 640 million, out of which 240 million are Muslims, 120 million are Christians, 150 million are Buddhist, and millions of Hindus are followers of other religions. Similarly, per capita income of Singapore is $52,000 and that of Laos is $1,353. In terms of size of the population, Indonesia is a giant with 261 million people and Brunei has just population of 450,000. Even strategic environment in the region has not been peaceful. Region has been a major theater of Cold War. There have been wars between Vietnam and Cambodia, China and Vietnam, conflicts between Singapore and Malaysia, Thailand and Philippines, territorial disputes in South China Sea. The region is full of problems from human trafficking
to organized crimes. Academic community was skeptical of success of ASEAN. British historian C. A. Fisher called the region as Balkans of Asia. ASEAN defied all skepticism. ASEAN is seventh largest economy on the track to become fourth largest by 2050. GDP was $95 billion in 1970, which has become $2.5 trillion in 2014. ASEAN is the seventh largest market, third largest source of labor. ASEAN has strengthened the security in the region. ASEAN has been able to establish itself as a community by following the culture of Musyawaraha, consultation, and Mufakt consensus. EU was one of the gold standards when ASEAN has become a way of future. ASEAN has not only contributed for the peace and prosperity of its own people, but of the entire region in the Asia Pacific. तो यहाँ तक कोई समराइज करना चाहेगा? यहाँ तक का कोई समराइज कर दो. दृश्यम सर चले गए क्या? स्ट्राइक सर कर दीजिए. Difference between approach of EU and ASEAN. EU is intrusive. It imposes lot of conditionalities. But ASEAN follows the ASEAN way. वो आगे भी कहा गया है कि सुप्रा नेशनल और इंटरनेशनल का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि कुछ चीजें उन्होंने कंबाइन करी है, जैसे कि लार्जली उनका डिफेंस आर्किटेक्चर नाटो से मैच होता है. दूसरी चीज फिजिकल या दूसरे वहां पर यूयू पार्लियामेंट है, ऐसी चीजें की गई है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. उनका चार्टर है, चीजें इंडिपेंडेंटली होती है. लेकिन एशियन का सक्सेस EU से ज्यादा है और दोनों स्टेबलाइजिंग फोर्सेस इन द रीजन एक्ट कर रहे हैं. कंपैरिजन बिटवीन एशियन एंड सार्क. बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन द थर्ड वर्ल्ड. ASEAN is the most advanced example, while SAARC is the least worst example. ये भी कहा जाता है SAARC is the least integrated region in the world. हमारा इंट्रा रीजन ट्रेड सबसे कम है, लेकिन ASEAN का वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है. सी राजा मोहन पाकिस्तान को कैमल इन द कैरावन ऑफ SAARC कहते हैं, विच स्लोज डाउन द ट्रैफिक. किशोर महाबूबनी ऑन एशियन. इन्होंने किताब लिखी थी एशियन मिरेकल. एशियन को उन्होंने प्रैग्मेटिक रीजनलिज्म बोला है. Instead of following blindly imitating European Union, Asian countries develop their own model as per situation prevailing in the region. ये पंचशील के प्रिंसिपल्स पे उसके बेसिस पे खड़ा है. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, फिर भी वो उतना जितना वोकल होना चाहिए था उतना वोकल बन नहीं रहे इंटरनल अफेयर्स में किसी की कंट्री. आगे एशियन नेवर प्रोग्रेस्ड इन लीनियर मैनर. एशियन मूवमेंट हैज बीन लाइक अ क्रैब, बट एशियन प्रोग्रेस इज टेंजिबल. वो ये भी बोलते हैं कि वेरी हाई पीस ऑफ डिग्री ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एशियन ने अटेन किया है. एंड साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिकली एंड रिलीजियसली इट इज अ वेरी डाइवर्स रीजन. ऑल मेजर रिलीजन्स आर प्रेजेंट. वाइल पर कैपिटा इनकम में भी बहुत डिफरेंसेस है, फिर भी एशियन का एक साथ रहना इज लाइक अ मिरेकल. एक तो यहाँ पहले पीस नहीं थी. अमेरिका वियतनाम वॉर हो रहा था, चाइना और वियतनाम वॉर हुआ था, कंबोडिया और वियतनाम वॉर हुआ था. लेकिन फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट साउथ चाइना सी में भी है. द रीजन इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, बट स्टिल
they were successful in creating one of the world's most successful regional entity. एकेडमिक कम्युनिटी ये एशियान के सक्सेस के बारे में स्केप्टिकल थी, लेकिन फिशर ने एशियान को बाल्कन्स ऑफ एशिया भी कहा था, क्योंकि ये सब कंट्रीज बहुत छोटे छोटे हैं, इनके इंटरेस्ट भी अलग अलग है और ये सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसे फिशर ने बोला था. लेकिन एशियान डिफाइड ऑल स्केप्टिसिज्म. नाउ इट इज 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी and it will be 4th largest economy by 2050. और एशियान ने कल्चर ऑफ मुसावयराहा मतलब कंसल्टेशन और मुफाकत कंसेंसस ये डेवलप किया है. EU was once gold standard whereas ASEAN has become way of future. EU में हमें रिसेंटली जैसे उसमें फीचर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन एशियान प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन हो रहा है. ASEAN has not only contributed to peace and prosperity of its own people, but of entire region in Asia Pacific. Okay, thank you, sir. Milestones in ASEAN. ASEAN started in its preliminary from Bangkok Declaration in 1967. 5 original countries were Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, and Indonesia. ASEAN was seen as a pro-US bloc, with the exception of Indonesia, which was non-aligned (NAM). Other countries were pro-US. India was invited to become the original member. However, India refused because India didn't want to be part of a pro-US coalition. In 1965, India and Pakistan had gone for war. In 1971, ASEAN countries declared ASEAN as a zone of peace, friendship and neutrality (ZOPFAN) to avoid arms race. In the same year, there was a war between India and Pakistan. तो हर बारी वो एशियन का जो फेज चल रहा था उससे इंडिया का कुछ अलग ही चल रहा था. In 1976, Treaty of Amity and Cooperation (TAC) treaty. All countries will resolve the dispute in peaceful manner. ASEAN enters into TACTT, which is partner countries. Also, example, India has also signed TAC with ASEAN. No such treaty exists among the countries of South Asia कि मतलब पीसफुली कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व कर ले. 1976 में बाली कॉनकॉर्ड 1, the program for social development of Asian region. No such program for South Asia. तो कोई सोशल डेवलपमेंट का साउथ एशिया में वो भी प्रोग्राम नहीं है. फिर 1977 एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट. In 1997, that is after 20 years, SAARC countries entered into SAPTA, South Asian Preferential Trade Agreement. वो 20 साल बाद एशियन के साउथ एशिया में हुआ. फिर 1992 एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. और SAARC का क्या हुआ? In 2004, SAARC countries agreed to create a SAFTA, South Asian FTA, but by the year 2016, so far it has not been materialized. 1994 ASEAN Regional Forum. It is an Asian initiative for regional security. This is the only security dialogue platform in Asia which includes North and South Korea, India and Pakistan. ये काफी बड़ा अचीवमेंट है एशियन का. Asian countries declare ASEAN as a nuclear weapons free zone. In 1998, India and Pakistan became nuclear weapons state. In 1997, ASEAN adopted Vision 2020. They achieved the target 5 years earlier. Hence, the new vision was adopted in 2015. In 1997, ASEAN Free Trade Agreement in Investment. No such agreement in South Asia. ASEAN has adopted ASEAN Charter in 2007. In 2015, ASEAN declared itself as a community with 3 pillars: economic, to develop supply chains, political, security, social and cultural. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी और सोशल एंड कल्चरल, ऐसे 3 पिलर्स. ओवरऑल असेसमेंट. Thus, ASEAN has been very successful model of regional integration.
Intra-Asian trade has gone to 25% of their total trade, whereas intra-SAARC trade has strengthened to 5% of the total trade of South Asian countries have with world. EU countries have intra-regional trade of 64% of their total external trade. तो वही इंट्रा-रीजनल ट्रेड का वो एक सक्सेसफुल एग्जांपल है. Do you think regional trading agreements are challenges to WTO or building blocks? It can be seen in both ways. Regional free trade agreements challenge multilateralism because they become preferential agreements or economic blocs. Regional free trade agreements are seen as a building blocks of the globalization. First free trade areas in the region, ultimately global free trade area can emerge. मतलब ये दो अलग अलग ओपिनियंस दिए, एक फेवर में और एक अगेंस्ट में. फ्यूचर ऑफ एशियन, ठीक है. Future of ASEAN challenges and opportunities. Challenge: USA-China rivalry. Present rivalry is limited to trade war. Trade war will have global ramifications, that is slowdown of global growth demand. It is predicted that there is a huge possibility of war between revisionist power of status quoist power, USA, Thucydides trap जो बोला है उसने. Effect of US-China rivalry on ASEAN. Asian solidarity is breaking down. Trump's America First policy creates uncertainty in the minds of its allies. USA's economic decline also reduces the attention of other countries towards USA. In such situation, it is natural for Asian countries to go for either bandwagoning with China, जैसे फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया ये कर रहे, और balancing. To counterbalance the regional hegemon, some countries of Asian region are looking for greater strategic engagement with India. In the age of multipolarity, there are greater chances of confusion and hence outbreak of wars. The region of South China Sea and the Indian Ocean can become hotspot of the war between India and China. Besides regional security environment, ASEAN also has some internal issues. First, regional divide. That is, Singapore is one of the most advanced economies. Myanmar is one of the weakest. According to IMF, there are governance challenges which undermine the business environment. Some of the families are owning huge enterprises. Crony capitalism exists. Crony capitalism मतलब elite bureaucrat, elite politicians or businessmen का nexus. Similarly, in some of the states, there are state-controlled enterprises. The problem of corruption and red tapeism. There is a lack of inclusive growth, failure to control organized crimes. One of the two major challenges in front of ASEAN is how to deal with Rohingya issue. Rohingya issue is one of the spin-off of US-China rivalry, but more of a India-China rivalry. One of the reasons for Rohingya crisis is to defeat the Indian initiative of BIMSTEC. South China में क्या dispute हो रहा है? So after huge tension between China and Asian countries, as US pressure is increasing, China has changed its approach. China is willing to be more accommodative. Recently, China and Asian countries have agreed on the text-based negotiations with respect to resolution dispute in South China Sea. China is also taking the initiative of BRI to attract Southeast Asian countries as infrastructure development connectivity is a serious concern in the region. Thus, from more offensive approach, China is getting mellowed down. The experts of international relations always warn against the charm offensiveness of the Middle Kingdom. मतलब इंटरनेशनल स्कॉलर्स काफी वार्न करते हैं कि चाइना के जो ऑफेंसिवनेस है उसके लिए. तो इसको कोई समराइज करना चाहेगा यहाँ तक? यहाँ से माइलस्टोन. क्रिएचर सर. सर कर देता हूँ, आप बताइए कहाँ से करना है. माइलस्टोन इन एशियन सर. माइलस्टोन एशिया. तो सर इन्होंने यही बताया एशियान की मतलब जो प्रीलिमिनरी स्टार्ट हुआ था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 से हुआ था. फिर इन्होंने बताया कि 5 ओरिजिनल कंट्री थी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया.
फिर जो एशियान था उसको प्रो अमेरिका मतलब प्रो यूएस ब्लॉक था। फिर उसमें जो इंडोनेशिया था वो नैम का पार्टनर था। मतलब बाकी के जो देश थे वो प्रो यूएस थे, लेकिन जो इंडोनेशिया था वो नैम का पार्टनर था। फिर इन्होंने इंडिया को भी इनवाइट करा कि ओरिजिनल मेंबर के मतलब एक आप भी आओ, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि इंडिया की जो रिलेशंस थे उस टाइम पे वे रशिया के साथ में सही चल रहे थे और इंडिया भी नैम का पार्ट था। फिर सर 1965 में इंडिया पाकिस्तान की का वॉर हुई, उसमें इंडिया ऑब्वियसली जीता था। फिर उसमें लिखा, फिर 1971 में एशियान कंट्री ने डिक्लेयर करा कि एशियान एज ए जोन ऑफ पीस है। फिर मतलब यही कि शांति है, मित और फ्रेंडशिप है, न्यूट्रलिटी है। मतलब इन्होंने मतलब बेसिकली ये नैम के प्रिंसिपल्स पे फिर चलने लगे। फिर लेकिन उसी साल लिबरेशन वॉर हो गई, जो मतलब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए लड़ी थी 1971 में। फिर उस टाइम पे भी यूएस ने सपोर्ट करा था पाकिस्तान को। फिर इन्होंने 1976 में लिखा है कि ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन साइन हुई, ऑल कंट्रीज विल रिजोल्व डिस्प्यूट इन, मतलब ये लिखा है कि पीसफुल मैनर में सारी कंट्री मैटर को सोल्व करेंगे। एशियान फिर एशियान एंटर्स इनटू टीएसी ट्रीटी विद इट्स पार्टनर कंट्रीज अलोंग। फिर इंडिया ने भी इसको साइन करा टीएसी विद एशियन कंट्रीज के साथ में। फिर नो सच ट्रीटी अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, मतलब ऐसी कोई ट्रीटी नहीं थी जो साउथ एशिया के साथ में एग्जिस्ट करती थी। फिर सर 1976 में बाली कॉनकॉर्ड हुआ, उसमें इन्होंने लिखा है कि फिर इन्होंने सोशल डेवलपमेंट एशियन रीजन में बात करी कि मतलब जितनी भी बेसिक्स नीड्स है जैसे एजुकेशन हेल्थ वगैरह इनको डेवलप करो। फिर साउथ एशिया में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर इन्होंने बताया कि 1977 में एशियान ने प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट साइन करा। फिर 1997 20 साल बाद जो सार्क कंट्रीज थी वो साप्टा में आई, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट आपस में ही कर लिया फिर इन्होंने। फिर 1992 में एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ऐसे याद रख सकते हैं सर, ग्लोबलाइजेशन का टाइम था तो इन्होंने भी फिर सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन करा। फिर 2004 जो सार्क कंट्रीज थी वो क्रिएट मतलब एग्री हो गई कि हम साफ्टा बनाएंगे, मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2016 तक। लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ, मतलब वो सही से उस फॉर्म में आ नहीं पाया जैसे ये चाह रहे थे। फिर 1994 में एशियान एक रीजनल फोरम बन गया, वहाँ पे मतलब फिर ये रीजनल सिक्योरिटी की बातें करने लग गए। फिर एक मतलब एक सिक्योरिटी डायलॉग फॉर्म बन गया उस टाइम पे एशिया में, जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया भी इंक्लूड थे और इंडिया और पाकिस्तान भी। फिर 1995 में एशियन कंट्रीज ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक न्यूक्लियर वीपन फ्री जोन बनेंगे, लेकिन हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वीपन स्टेट बन गए। फिर 1997 में एशियान ने अडोप्ट करा विजन 2020, जिसमें 5 टारगेट रखे थे उन्होंने, मतलब न्यू हैंस द न्यू विजन वाज अडोप्टेड इन। फिर उन्होंने एक नया विजन अडोप्ट करा 2015 में। फिर इन्होंने लिखा सर कि मतलब जो एशियान था फिर उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा इन्वेस्टमेंट वगैरह में, लेकिन ऐसा कुछ नो सच एग्रीमेंट इन साउथ एशिया, ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं था साउथ एशिया में। फिर 2007 में एशियान ने एशियन चार्टर वो करा, मतलब एशियन चार्टर बनाया। फिर 2015 में इन्होंने सर एक कम्युनिटी बनाई, 3 पिलर्स थे जिसके, एक तो इकोनॉमी टू डेवलप सप्लाई चेन्स, और एक था पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल। मतलब एक तो इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, एक सोशल एंड कल्चरल, ये 3 पिलर्स थे जिसपे एशियान को खड़ा करा था इन्होंने। फिर इन्होंने सर ओवरऑल असेसमेंट कहा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि एक सक्सेसफुल रीजनल इंटीग्रेशन का काम करा इसने। फिर इंट्रा एशियन ट्रेड भी 25% बढ़ गया, और जो इंट्रा सार्क ट्रेड था वो 5% तक ही स्टैग्नेंट था। फिर सर ईयू कंट्रीज का जो इन्होंने बताया कि इंट्रा रीजनल ट्रेड 64% था उनके टोटल एक्सटर्नल ट्रेड का। Okay. आगे भी है क्या सर? हाँ. तो
तो सर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको लगता है कि रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो चैलेंज करते हैं डब्ल्यूटीओ को और बिल्डिंग ब्लॉक्स को, तो मतलब इन्होंने फिर ये लिखा है कि ये दो तरीकों में देखा जा सकता है कि रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चैलेंज तो करते हैं मल्टीलेटरलिज्म को, लेकिन क्योंकि वे प्रिफरेंशियल अरेंजमेंट इकोनॉमिक ब्लॉक चाहते हैं, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, इसलिए वे चैलेंज तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है सर रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर सीन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक ब्लॉक बन रहा है ग्लोबलाइजेशन में, एक लॉबी क्रिएट हो रही है। फिर फर्स्ट फ्री ट्रेड एरियाज इन रीजन एंड फ्री ट्रेड एरिया कैन एमर्ज, मतलब पहले तो सर एक फ्री ट्रेड एरिया बन के उभरा, फिर ये ग्लोबल फ्री ट्रेड एरिया बन के उभर गया। फिर उन्होंने लिखा है क्या फ्यूचर है एशियन का, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। फिर यूएस चाइना की राइवलरी है, प्रेजेंट राइवलरी, मतलब अब तक तो ये ट्रेड वॉर तक ये लिमिटेड है, लेकिन ट्रेड वॉर विल हैव ग्लोबल रेमिफिकेशंस, मतलब ये अगर मतलब ये होएगा क्या कहते हैं ट्रेड वॉर होएगा तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो इन्होंने वही लिखा है, स्लो डाउन करा है उसमें। फिर इन्होंने यही लिखा है कि प्रिडिक्ट करा है ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन द रिविजनिस्ट पावर, जैसे ये चाइना वगैरह हो गई, चाइना रशिया, और ये स्टेटस क्वेस्ट पावर यूएस से हो गई। ये उसने कहा है सर थ्यूसीडाइड्स ट्रैप ने। फिर है सर इफेक्ट ऑफ यूएन चाइना राइवलरी ऑन एशियान, मतलब जो एशियान की जो सोलिडरिटी थी वो ब्रेकिंग डाउन हो गई, क्योंकि मतलब जो पार्टनर्स थे वो अलग अलग, मतलब एक अलग अलग रिजीम के हैं। जो पहले थे वे तो प्रो अमेरिका थे, बाद में जो ऐड हुए उनकी अलग वो थी, कोई नैम का पार्टनर, तो मतलब सोलिडरिटी जो थी वो चेंज हो गई। फिर ट्रम्प की वे आई, अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी आई, उसने अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दिया लाइज के बीच में। फिर इन्होंने लिखा है सर यूएस से इकोनॉमिक डिक्लाइन आल्सो रिड्यूस द अट्रैक्शन ऑफ अदर कंट्रीज टुवर्ड्स यूएस से। हाँ, जब सर वे फर्स्ट अमेरिकन कह रहे थे तो जो अलग जो उनके अलाइज थे उनके साथ में जो एग्रीमेंट्स वगैरह थे, अट्रैक्शन था वो कम हो गया। इन सब सिचुएशन में जो एशियन कंट्री थी वो बैंड वैगनिंग विद चाइना, मतलब ये जो एशियन कंट्री थी ये चाइना के तरफ झुक गई, जैसा फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब उस तरफ झुक गई। और बैलेंसिंग टू काउंटर बैलेंस द रीजनल हेजेमनी, सम कंट्रीज ऑफ एशियन रीजन आर लुकिंग फॉर ग्रेट स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद इंडिया। सर फिर इन्होंने क्या कहते हैं एंगेजमेंट करने स्टार्ट कर दिए इंडिया के साथ में। फिर इन्होंने लिखा है इन द एज ऑफ मल्टीपोलैरिटी, जिसकी इंडिया भी बात करता है मल्टीपोलैरिटी की, तो इन्होंने कहा है कि एक ग्रेटर चांस होते हैं कन्फ्यूज़न के, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी है, अलग अलग आइडियाज़ क्रिएट होंगे तो कन्फ्यूज़न ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। हैंस आउटब्रेक ऑफ वॉर्स, द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी एंड एशियन ओशन कैन बिकम अ हाउसफुल फॉर द वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वही लिखा है सर कि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन एक हॉटस्पॉट बनेंगे वो अगर कभी हुई इंडिया और चाइना के बीच में। फिर इन्होंने लिखा है बिसाइड्स रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट एशियन ऑल्सो हैज सम इंटरनल इश्यूज, जैसे सर रीजनल डिवाइड, सिंगापुर जो है वो बहुत ही एडवांस इकोनॉमी है और म्यांमार वहाँ पे देखो मिलिट्री कूप भी हुआ है, वो एक वीक है। फिर इन्होंने लिखा है आईएमएफ की रिपोर्ट है, उन्होंने बताया है कि इन कंट्रीज़ के सामने गवर्नेंस चैलेंजेस भी है और बिजनेस एनवायरनमेंट ये क्रिएट नहीं कर पाती। फिर इन्होंने लिखा है कि कुछ कंट्रीज ह्यूज एंटरप्राइजेस को ओन कर रही है, क्रोनी कैपिटलिज्म, और क्या कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है मतलब एलिट पॉलिटिशियंस और एलिट जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो नेक्सस होता है उसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो रशियन ओलिगार्क्स जो है वो काफी फंड करते हैं रशियन गवर्नमेंट। हेलो हेलो आवाज ब्रेक हो हेलो रही है सर हेलो आपकी। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हेलो सर अब सही आ रही है। क्या मैं रिज्वाइन कर लूँ या आप ठीक आ रही है? हेलो हेलो, तो फिर ब्रेक हो गई। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट।
हेलो हेलो, हाँ अब सर, ठीक अब है? सही आ रही है आपकी आवाज़। हाँ सर, सही आ हाँ रही है। हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? सर हाँ सर, आ गई, स्क्रीन भी आ गई सर। ओके। हाँ, मैं कह रहा था कि क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब एलिट ब्यूरो, एलिट पॉलिटिशियंस और एलिट जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो नेक्सस होता है उसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। जैसे रशिया में ओलिगार्क्स जो है वो रशियन गवर्नमेंट को या पुतिन के जो भी एडवेंचर्स है उनको फंडिंग देते हैं, तो वो वाला लेवल पे क्रोनी कैपिटलिज्म चलता है। मतलब सर कि जो गवर्नेंस वगैरह, जो पॉलिसीज वगैरह क्रिएट हो रही है, वो मतलब जो कैपिटलिज्म को दिमाग में रख के बन रही नहीं, है ना सर? मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में चला गया, कैपिटलिज्म में दिमाग में रख के बन गया, मतलब इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, पर एक क्रोनी कैपिटलिज्म इनहेरेंटली निगेटिव वर्ड है। मतलब वो एक गलत परसेप्शन दिखा रहा है बिजनेसमैन लोग और पॉलिटिशियन लोगों का नेक्सस के बारे में, कि वो लोग मिलके सारी जनता को लूटते हैं ऐसे काइंड में। अच्छा सर। ये लोग गवर्नेंस से लूटते हैं और ये लोग अपने बिजनेस मॉडल से लूटते हैं, और दोनों मिलके मतलब अपने मिली भगत से खुद कमाते रहते हैं ऐसे। अच्छा सर, जैसे ओलिगार्ची है हाँ, रशिया वगैरह में, ओलिगार्की, उससे। हाँ रशिया में ओलिगार्की वो परफेक्ट एग्जांपल है क्या क्रोनी कैपिटलिज्म का। ठीक है सर, ठीक है सर। तो फिर इन्होंने लिखा है सर, बैलेंसिंग एशिया रीजनल डिवाइड, ये हो गया था। तो फिर इन्होंने लिखा है इंटरलाइन बिजनेस, ये भी हो गया। हाँ, फिर इन्होंने लिखा है सर, सिमिलरली इन सम ऑफ द स्टेट्स स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस। मतलब अलग, जैसे चाइना भी इसका पार्ट है, तो चाइना में स्टेट ओन करता है एंटरप्राइजेस वगैरह को। फिर करप्शन है सर, रेड टेपिज्म में, लाल फीताशाही वगैरह। और लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है। मतलब हर आदमी मतलब सिर्फ अपने अपने वो कर रहे हैं। एक जैसे इन्होंने बताया था, अभी ऊपर लिखा था कि इस वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कुछ ही लोग ओन कर रहे हैं ज्यादातर चीजें, तो इंक्लूसिव नहीं हो पा रहा फिर वो। फिर उन्होंने लिखा है सर, कंट्रोल ऑर्गेनाइज क्राइम्स, मतलब फेलियर कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम। जैसे पाकिस्तान भी इसका पार्टनर है, तो पाकिस्तान में देख सकते हैं हम। फिर इन्होंने लिखा है सर कि वन ऑफ द टू मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ एशियान, दो सबसे बड़े कारण, एक तो यह है कि रोहिंग्या का इश्यू है। रोहिंग्या इश्यू जो करता है, रोहिंग्या इश्यू यूएस चाइना के बीच में राइवलरी बन जाता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया और चाइना की राइवलरी पे ज़्यादा दिखता है। मतलब इनकी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ती है, उनकी कम है। फिर वन ऑफ द रीजन फॉर रोहिंग्या क्राइसिस इज टू डिफीट द इंडियन इनिशिएटिव ऑफ बिम्स्टेक। मतलब जो एक बिम्स्टेक, जिसमें इंडिया पार्टनर है बिम्स्टेक में, जिसमें सर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया और म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब सारी कंट्रीज पार्टनर है। उसको वे भी टैकल नहीं कर पा रहे इस क्राइसिस को। फिर है सर साउथ चाइना डिस्प्यूट्स, ऊपर करेंगे सर। हाँ सर, बस। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है चाइना और एशियन कंट्रीज़ के बीच में। यूएस का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। चाइना ने भी अपनी अप्रोच चेंज कर दी है। चाइना ज़्यादा पैसे वगैरह चाहता है, एकोमोडेटिव, मतलब ज़्यादा अपना दबदबा बनाना चाहता है। जो रिसेंटली चाइना और एशियन कंट्रीज एग्रीड हुए हैं कि टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन करेंगे, वे जितने भी साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको लेके। फिर इन्होंने बोला है चाइना इज़ ऑल्सो टेकिंग, मतलब वही ऐसा BRI का इनिशिएटिव लिया है जिसमें ये साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी अपने साथ ऐड कर रहे हैं, और जिसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पे सबको बता रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो डेप ट्रैप में फंसा रहे हैं इन कंट्रीज़ को। It does form more offensive approach. China is getting mellowed down. The experts of international relations always warned against charm offensives of the Middle Kingdom. मतलब यही ऐसा जो मैंने बताया डेप ट्रैप वगैरह में, कि ऐसे दिखा रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वे फंसा रहे एक तरीके से। फिर है सर इंडिया एंड एशियन रिलेशंस। फिर इन्होंने लिखा है कि इफ देयर इज एनी रीजन वेयर इंडिया पंचेस बियॉन्ड इट्स वेट, it is Southeast Asia. Look East Act proved to be the most successful initiative of South Bloc. मतलब यही है सर कि लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह एक
इंडिया ने सबसे अच्छा स्टैंड लिया है साउथ ब्लॉक में और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। टुडे इंडिया इज़ वेल प्लेस्ड इन द इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। हाँ मतलब सर अभी ये कह रहे थे कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देख सकते हैं हम, जैसे अभी यूएस के जो रिपोर्टर वगैरह थे वो ये कह रहे थे कि इंडिया को ज़्यादा एड मिलती है। तो अभी इंडिया ने मतलब जो फिगर्स हैं वे यही कहते हैं कि इंडिया को जितनी एड मिलती है वो उससे ज़्यादा दूसरी कंट्रीज को दे रहा है। वो ज़्यादातर कंट्रीज सर इसी में पड़ती है, जो ये साउथ ब्लॉक है यहीं पे पड़ती है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सारी कंट्री है जो। फिर है सर यही लिखा है इन्होंने, ईस्ट एशिया समिट भी बनाई है यूएस एंड रशिया ने। और फिर इन्होंने लिखा है लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू एशियन कंट्रीज इन गिविंग सच सेंट्रलिटी टू इंडिया इन एशिया पैसिफिक। मतलब वही ये कहते हैं सर कि दो ही कहते मतलब पूरी होल ओवर दी वर्ल्ड यही कहते हैं कि अगर जो ईस्ट में है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे दो ही प्लेयर है, या तो इंडिया हो गया फिर चाइना हो गया। तो वही कह रहे हैं इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है यहाँ पे। फिर है सर सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन इन एशिया पैसिफिक। एशियन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ एशिया पैसिफिक। यही है सर कि मतलब एशियन जो कंट्रीज है ये एक न्यूक्लियस मतलब बीच में है, एक डोमिनेंट प्लेयर है ऑल ओवर नहीं सर एशिया पैसिफिक में। फिर उन्होंने लिखा एशियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ इंडिया टू द रीजन। एशियन जो है गेटवे है इंडिया के लिए इस रीजन में। वी शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड एशिया। मतलब ये सर एक कोट भी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि जो मतलब जो कुछ भी अब होगा वो एशिया पैसिफिक रीजन की एक सेंचुरी है। पता नहीं सर किसी ने कहा है ये। और फिर इन्होंने लिखा है कि एशियन इज द बेस्ट अलाई ऑफ इंडिया इन द रीजन। यही है सर कि जो एशियन है वो इंडिया का एक बेस्ट अलाई है इस रीजन में। फिर सर टाइमलाइन ऑफ इंडियन एशियन रिलेशंस, एशियन रिलेशंस 1967 में जब एशियन बना था तो इंडिया को इनवाइट करा था एज ए इनिशिएटिव, लेकिन इंडिया ने एशियन को इग्नोर कर दिया था। वो इसीलिए करा था क्योंकि वो प्रो यूएस था, तो इसलिए इंडिया ने इग्नोर कर दिया था। फिर जब कोल्ड वॉर हुई इंडिया लॉस्ट यूएसएसआर एंड ओपन अप इट्स इकोनॉमी। मतलब ज़्यादातर जो प्रिंसिपल्स थे वो चाइना के बेसिस पे चलता था इंडिया स्टार्टिंग में, सोशलिज्म वगैरह पे, लेकिन बाद में फिर ग्लोबलाइजेशन वगैरह आया तो इंडिया ने अपनी जो इकोनॉमी थी वो ओपन कर दी। देयर वॉज नो पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन इमीडिएट neighborhood. India had to look towards the extended neighborhood. If South Asia forms the first mandal, Southeast Asia and West Asia came in second concentric circle. मतलब सर यही है कि जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो इमीडिएट नेबरहुड में तो है नहीं, क्योंकि एक तरफ चाइना है, टू फ्रंट वॉर है, इंडिया को हमेशा फेस करनी पड़ती है। तो इंडिया को अपने जो रिलेशंस है वे एक्सटेंडेड करने पड़ेंगे जो और बाकी के जो नेबर्स है उसके साथ में। जैसे इंडिया ऑब्वियसली मेंटेन करता है नेपाल, भूटान और ये इधर म्यांमार की तरफ। फिर सर इन्होंने लिखा है कि 1992 में क्या हुआ कि इंडिया क्या हुआ एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बन गया। फिर इन्होंने पाकिस्तान की भी फिर एंट्री हुई, वो भी बन गया। फिर 1996 में एक फुल डायलॉग पार्टनर बन गया। 2002 में इन्होंने इंडिया का जो स्टेटस था वो एलिवेटेड हो गया और इंडिया समिट लेवल पार्टनर बन गया। मतलब यही है कि सर क्या क्या हुआ है इसमें हिस्ट्री बता रहा है। एशिया इनवाइटेड इंडिया टू बी ए पार्ट ऑफ all its initiative like Asian Regional Forum, East Asia Summit, ADMM and रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम, इन सब का पार्ट बन गया। फिर इन्होंने लिखा है कि इंडिया एंड एशियन हैव बिकम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इट इज टू बी नोटेड दैट पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। मतलब इंडिया का जो लेवल था वो इंक्रीज होता गया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के तौर पे ही रह गया। फिर 2010 में इंडिया ने एंटर्ड करा इट्स फर्स्ट एंड ओनली रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट विद एनी ब्लॉक। मतलब पहला वो था कि जब इंडिया ने एक रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन करा किसी भी ब्लॉक के साथ में, साउथ ब्लॉक था ये। फिर 2015 में इंडिया ने एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सर्विसेज। तो वहाँ पे जो इन सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर में ऑब्वियसली इंडिया
डोमिनेंट प्लेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो यहाँ पे इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा सर्विसेज में। Significance, there is huge imbalance in India Asian trade which is lifted towards ASEAN. Inclusion of service will play in bringing the balance in its trade. तो सर सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा, तो वही बैलेंस करता है इसको ट्रेड में। फिर 1990 में इंडिया एशियन ट्रेड वाज $9.4 billion। इन 2014-15 इट बिकॉज मतलब ये पहले 9.4 बिलियन था, इट विल इंक्रीज अराउंड 76.53 बिलियन। और जो एशियन का चाइना के साथ ट्रेड था वो $452 बिलियन है, ये लिखा है सर। आगे क्या है सर इसमें? तो इन्होंने लिखा है इंडिया एंड एशियन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सब रीजनल इनिशिएटिव लाइक मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। India and Thailand are working in together for advancement of CLMV countries Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, LDC. China also has similar initiative known as GMR Greater Mekong Region। मतलब यही है सर जो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उसमें ये सब एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए, इनिशिएटिव आए जिसमें जो आपस में जो कंट्री है इन्होंने रिलेशंस अच्छे करें। फिर कनेक्टिविटी जो है वो एक थ्रस्ट एरिया बन गई। अभी भी थाईलैंड के साथ में थाईलैंड और म्यांमार और इंडिया के साथ में कोई वो चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनके बीच में सर। तो इन्होंने लिखा है सर 2 मेजर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया आर कालादाना मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड इंडिया एंड म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो मैंने बताया वही बता रहे हैं, विच विल पास थ्रू मोरे मणिपुर बागान म्यांमार और मेईसोट, ये थाईलैंड में सर। फिर इन्होंने लिखा है मेकोंग गंगा इनिशिएटिव जिसमें इंडिया स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है चाइना को वीक करने के लिए, 2000 में बना था। इसके 4 पिलर है कोऑपरेशन के, जिसमें सर एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। फिर जैसे और अदर इंडिया ने भी इसके अलावा भी इनिशिएटिव लिए हैं। फिर सर है कि थाईलैंड बिकम टू डिसअपॉइंटेड एंड लॉन्चेस, मतलब थाईलैंड डिसअपॉइंट हो गया और उसने अपना अलग से इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, इरावदी चाओ पारिया मेकोंग इनिशिएटिव। फिर उन्होंने लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन ए न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म डेवलप करा है। फिर 2000 मतलब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म डेवलप करा है जिसपे सब कह सकते हैं अपनी बातें, पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब अपनी अपनी चला रहे थे। In 2016 a plan of action was adopted to expand cooperation in infrastructure, मतलब एक प्लान डेवलप करा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने में, आईटी में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंटरमीडिएट गुड्स में। और इंडिया हैज गिवन 2 बिलियन LOC लाइन ऑफ क्रेडिट टू CMLV कंट्रीज, मतलब यही है सर लाइन ऑफ क्रेडिट, इसमें इंटरेस्ट वगैरह इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर है सर Mekong and Ganga are known as civilizational rivers. There is huge influence of India in the region, मतलब जो मेकोंग और गंगा है, जैसे हमारे यहाँ पे गंगा है तो उनके वहाँ पे मेकोंग को एक डिविनिटी के तौर पे मानते हैं, एक सिविलाइजेशनल रिवर्स के तौर पे मानते हैं। फिर there is huge influence of India in the region. India should give strategic views to the region which is a land base to connect further with Southeast Asia, मतलब इंडिया इसलिए इन कंट्रीज के साथ में रिलेशन अच्छे कर रहा है क्योंकि इट विल हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन द इंडियाज एंड साउथ एशियन कंट्रीज। तो यही है सर इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। फिर ये मैप है सर, इसमें दिखा रखा है इन्होंने। हाँ तो सर ये हो गया शायद। हाँ बढ़िया, थैंक यू सर। अब हम यहाँ पे समराइज करना है आगे का पॉइंट, क्या इसको ही समराइज करना है या आगे का पॉइंट लेना है? आगे का ले लेते हैं, ये आर्टिकल में से देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में से।
लोड नहीं हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, एशियन। स्टोइक सर, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको फटाफट। पढ़ लूं मैं? हाँ, पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था एशियान, most successful regional cooperation in the third world. ASEAN is example of security regionalism to ward off threat from communist USSR, and second most advanced regional organization after EU. Three pillars: economic, political and strategic, and cultural. Third one. Comparison between EU and ASEAN. EU no constitution. ASEAN constitution है, उनका चार्टर बना है 2007 में. EU सुप्रानेशनलिज्म है और एशियन इंटरगवर्नमेंटलिज्म है. ईयू रेगुलेट डोमेस्टिक पॉलिसीज करता है, जैसे वो डेमोक्रेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिस्कल पॉलिसी इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनका मोटा मोटी नाटो के साथ डिफेंस अलाइनमेंट है. लेकिन एशियन में ऐसा कुछ नहीं है. नॉन इंटरफेरेंस इनका की प्रिंसिपल है. इसको एशियन वे भी बोलते हैं. EU mix of consensus and qualified majority, while ASEAN works only on principle of consensus. EU single currency and ASEAN currency swap. EU fortress, but ASEAN is inclusive. जैसे EU ने EAS और RCEP भी ज्वाइन करा है. EU mostly homogeneous, but ASEAN there is a great political and economic diversity. Both EU and ASEAN are outward-looking blocs, building peace and security architectures. Both examples of top-down approach and close regionalism. Achievements of ASEAN versus SAARC. इनकी जोपान स्ट्रेटेजी थी जोन ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड न्यूट्रलिटी. लेकिन 71 में साउथ एशिया में वार हो गया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर. न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बना था 1995 में. साउथ एशिया में दो न्यूक्लियर पावर बनी, इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1998. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है 1977 और FTA बना था 1992 में. लेकिन साफ्टा इन्होंने कमिट करा था 1997 में. 2005 से नेगोशिएशन शुरू है, लेकिन अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है. इनका विजन 2020 है, जो उन्होंने 5 साल पहले अचीव कर लिया था. हमारे पास ऐसा कोई नहीं. एशियन लीडर मस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर. इस समिट तो अभी वो ब्लॉक ही चल रहा है, वो पठानकोट बात तो हो ही नहीं. मास्टर प्लान ऑन एशियन प्लस कनेक्टिविटी. सार्क इज स्ट्रगलिंग इवन विथ BBIM. एशियन प्लस कनेक्टिविटी में वो सब रोड, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी सबका सिंपोसियम है वो एक. लेकिन
सार्क का BBIN भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कुछ स्कॉलर्स है जैसे किशोर महाबूबनी, एशियन मिरेकल नाम की किताब लिखी है इन्होंने, एशियन मिरेकल कैटलिस्ट फॉर पीस। डिस्पाइट डाइवर्सिटी, Asian created unique sense of community and identity. Role of strong leaders, geopolitical luck, market-oriented economic policy, and creating series of regional and extra-regional multilateral platforms that engages ASEAN with its dialogue partners in ASEAN-led processes. ASEAN is now dispensable in region. It helped to shape the regional interactions with great powers including China, India, Japan and US. Challenges क्या है एशियान के? Divided on geostrategic issues like rising China. इंडोनेशिया और मलेशिया इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं। लाओस, कंबोडिया ने एंटी चाइना स्टांस ले लिया है। फिलीपाइंस गो टुवर्ड्स चाइना while others प्रो वेस्ट है। ह्यूमन राइट्स, रोहिंग्याज और इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का भी इश्यू है। ये सिंगापुर वाला इंडियन डायस्पोरा, ये भी इशू हम डाल सकते हैं इसमें। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन थाईलैंड एंड म्यांमार मिलिट्री coup। ये जो अपर या नॉर्दर्न एशियन कंट्रीज है, इसमें मिलिट्री का रोल बहुत स्ट्रांग है। फ्रॉम लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम का लास्ट 10 इयर्स में दिख नहीं रहा है, लेकिन मिलिट्री का रोल है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रीजनल इम्बैलेंस। कुछ कंट्री जियोग्राफिकली बहुत छोटी है, कुछ इकोनॉमिकली बहुत एडवांस्ड है, कुछ बहुत पीछे है। जैसे कि कंबोडिया का पर कैपिटा इनकम अराउंड $1300 है, वही सिंगापुर का वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, $52,000 पर कैपिटा। तो ये भी बहुत सारे इश्यूज इसमें है। राइजिंग फंडामेंटलिज्म इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये वही जो वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म राइज हो रहा है। जैसे कि कुछ पहले के वो महाथीर मोहम्मद और ये लोगों ने भी रिलीजियस नेशनलिज्म का स्टांस अपनाना शुरू कर दिया है। किशोर महाबूबनी एशियन मिरेकल किताब में ग्रेटेस्ट वीकनेसेस बताते हैं एशियन की, जैसे कि लैक ऑफ नेचुरल कस्टोडियन। ऐसी कोई एक कंट्री नहीं है जैसे कि हेजेमॉन होता है, वैसा कोई इसमें हेजेमॉन नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एक्सेप्टिंग कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनरशिप टू कीप ऑर्गेनाइजेशन मूविंग, ये इन्होंने वीकनेसेस में काउंट किया है। इंडोनेशिया, only country capable of such responsibility is still unable to perform such role. इंडोनेशिया की पॉपुलेशन एशियन रीजन में हाईएस्ट है, उनका पर कैपिटा इनकम भी मीडियन के आसपास आता है, लेकिन वो कोई बड़ा रोल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इंट्रा एशियन सिक्योरिटी इश्यूज characterizes this complex region, including Rohingya crisis, migration, human trafficking, pandemics, climate change, South China Sea, and piracy. And the last one, never has the same level of political urgency as in EU. ये हम अभी के चल रहे म्यांमार क्राइसिस में भी देख सकते हैं कि ये यूक्रेन में थोड़ा सा हल्ला हो गया तो सारा EU, ये इनकी समिट हो रही है, डायलॉग वायलॉग बन रहा है, लेकिन म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर करने के बाद भी ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। एपिक का इन्होंने लिखा नहीं है, सार्क। सत्यम सर, हो गया तो? हाँ हो गया, यहाँ से भी हो गया। सर एपेक तो कल ही हो गया था ना, एशिया हाँ पैसिफिक एपिक इकोनॉमिक। शायद कल ही हुआ था, मैं एंड में नहीं था, अगर हुआ होगा तो हुआ होगा। हाँ सर, ये कल हो गया था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक। अच्छा ठीक है। हाँ फिर अभी सार्क और बिम्स्टेक ही करने हैं। इसमें क्या क्या है, सार्क में भी इसका डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं दिया। नाफ्ता भी कर चुके हैं हम, तो इसमें कुछ है ही नहीं फिर।
सार्क भी नहीं है और बिम्स्टेक भी नहीं है, ठीक है वही से कर लेंगे फिर। इसमें कितना है, एक ही पेज है, बिम्स्टेक भी एक ही पेज होगा। बिम्स्टेक तो बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ एनालिसिस है नहीं इसका। ठीक है, सार्क से स्टार्ट करते हैं। ये मैं कर लेता हूँ, आगे वाला कोई और कर लेना। सार्क, सार्क में ये अफगानिस्तान है, ये मत भूलना, और क्या पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हो गया। सार्क रीजनल इंटीग्रेशन है साउथ एशियन कंट्रीज का, और ये सबसे वर्स्ट एग्जांपल कहा जाता है रीजनल इंटीग्रेशन का, क्योंकि कोई है ही नहीं, सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। और वो कैरावान के जैसे कहा था सी राजा मोहन ने कि वो स्लो डाउन करता है पूरे इसको। और पाकिस्तान को कैरावान कहा था, तो इन्होंने यही सार्क को ही कैरावान कहा कि वो जाम हो गया है पूरा। और सार्क डेडलॉक है 2016 पठानकोट अटैक के बाद से इंडिया ने पूरा ही उसको। स्टॉइक सर कुछ कह रहे थे आप? वो दो स्टेटमेंट है अलग अलग। जैसे हाँ कैरावान वाला हाँ वो है कि पाकिस्तान इज अ कैमल इन कैरावान हाँ हाँ विच स्लो डाउन द स्पीड ऑफ कैरावान। हाँ, ये और किसने कहा ये था? जैम ये राजा मोहन ने कहा था ना? मोहन ने कहा था, और जैम्ड व्हीकल एस जयशंकर ने कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ, तो रीजनल इंटीग्रेशन is a means to transform conflictual interrelations by creating independence in economic and security issues। तो इस वजह से कि इंटर रिलेशन हो और थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, इसलिए थोड़ा ये सार्क प्रमोट करने का ट्राई हो रहा था, पर हो नहीं रहा। तो फीचर्स क्या क्या है इसके कि ऑब्वियसली ये इंडिया की और पाकिस्तान की वजह से, जो काफी पॉपुलस कंट्रीज है, इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्स है, मोस्ट नेचुरल डिजास्टर है इस रीजन में क्योंकि हिमालय रीजन है, एक्सट्रीमली वल्नरेबल न्यूक्लियर वॉल क्योंकि दो बाउंड्री न्यूक्लियर स्टेट कंट्रीज है, तीन वैसे कंट्रीज है बाउंड्री वाले, चाइना को भी इंक्लूड करके, जो काफी एक दूसरे के अगेंस्ट है काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स में। और extremely vulnerable to conventional and non-conventional security threats like human trafficking, crime, religious extremism, ये सब काफी देखा जाता है ये रीजन में। South Asia has been extremely vulnerable to great power politics because of its strategic location। जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान का यूज हुआ कोल्ड वॉर में, वैसे काफी ये रीजन रहा है काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ। फिर क्या बोला ये, ईस्टर्न अफ्रीका टू starting from Eastern Africa to Middle East and reaching to Southeast Asia, hence there is a urgent need of regional integration। तो वही वो एम्फोसाइज कर रहे हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है। फिर 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी के आइडिया चेंज हुआ है और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जनरेट हुआ है, और नेबर्स को चेंज करने की जरूरत है उस अकॉर्डिंगली। द ओल्ड काउंटिलियन अप्रोच वेयर नेबर इज नेचुरल एनिमी इज हार्डली सस्टेनेबल। वो मतलब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन हो गया, नाफ्ता हो गया, इसमें कैसे इंटीग्रेशन हुआ है, इसलिए ये कौटिल्य का जो अप्रोच है वो एक्सपांशनिस्ट अप्रोच है कि जो नेबर है हमारा वो फर्स्ट एनिमी है, तो वो अभी थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा उस अप्रोच को। फिर हिस्ट्री ऑफ सार्क में कहा है, सार्क इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ बांग्लादेशी प्रेसिडेंट जियाउर रहमान। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1985 और अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन किया। ऑब्जेक्टिव क्या था सार्क का? तो पीस और प्रोस्पेरिटी था। सार्क इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, जिसमें बोला था कि नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल मैटर्स में, और वेस्टफैलियन आइडिया है वो सॉवरनिटी का, मतलब एब्सोल्यूट, वो स्टेट को एब्सोल्यूट मानते हैं और जो भी डीलिंग होगा वो स्टेट से ही होगा, इंटरनल मैटर से कुछ नहीं होगा। और डिसीजन मेकिंग सार्क में कंसेंसस के बेसिस पे होता है। फिर सार्क के अचीवमेंट्स क्या क्या है? तो मनमोहन सिंह ने कहा है कि सार्क को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं, ये ग्लासेस हाफ फिल्ड और ग्लासेस हाफ एम्प्टी।
इन कंपैरिजन ऑफ ईयू एंड एशियान, सार्क ने कुछ भी अचीवमेंट किया नहीं है वैसे। बट क्या बोला, इंट्रा रीजनल ट्रेड ट्रेड स्टैग्नेटेड, हाँ मतलब स्टैग्नेट ही है इंट्रा रीजनल ट्रेड। नो चांस ऑफ साफ्ता कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, कोई चांस ही नहीं क्योंकि ढंग से नेगोशिएशंस भी नहीं हो पा रहे। और आइडिया ऑफ साउथ एशियन कम्युनिटी वो भी काफी दूर है क्योंकि हर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स है। अभी नेपाल इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, तो कम्युनिटी एक सॉलिड बिल्ड होना जैसे एशियन कम्युनिटी यू कम्युनिटी है वैसे काफी डिफिकल्ट है। फिर भी अचीवमेंट्स क्या क्या है, तो सार्क का सैटेलाइट है एक, साउथ एशिया का एक यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन फूड बैंक है फूड क्राइसिस के मैनेज करने के लिए, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल होता है, साउथ एशियन मिल्क ग्रिड है, साउथ एशिया एजेंसी फॉर डीएमएम है कुछ तो, या क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा। साउथ एशिया फेडरेशन गेम्स है, ये एटलीस्ट कुछ तो है, ये देख लेता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट है वो डीएमए। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। रीजन फॉर फेलियर ऑफ सार्क, though relations between India and Pakistan, the two largest countries of SAARC, are responsible for the failure, there are some more structural problems। मतलब इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है उसमें। तो क्या क्या इश्यूज है, तो सार्क एक निगेटिव प्लेटफॉर्म के साथ, निगेटिव माइंडसेट के साथ प्लेटफॉर्म बना है, और अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बी फॉर्म विथ व्यू ऑफ कोऑपरेशन। तो सार्क का जो है वो चैलेंज होता है इंडिया के रीजनल हेजेमनी से। It was thought that SAARC will be a coalition of Indian neighbors to balance India। मतलब ऐसा उनका सोच था कि इंडिया जो हेजिमन है उसको काउंटर करने के लिए अपन सार्क बनाएंगे। फिर रीजन वही इंडिया का था पहले अगेंस्ट सार्क ज्वाइन करने के लिए, कि वो हेजिमनी क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। SAARC would be India dominated platform was the reason that Pakistan was also against SAARC। अगर इंडिया सार्क में है तो ऑब्वियस इंडिया डोमिनेट करेगा। Later Pakistan thought not to leave India free and joined SAARC to oppose Indian proposals। मतलब इंडिया को सारे प्रपोजल्स को अपोज करने के लिए पाकिस्तान ने ज्वाइन करा, मतलब उसका ज्वाइन करने का पर्पज ही नोटोरियस था। In other regional organization there has been external push factor like USA and EU and ASEAN। There was यूएसए इन ईयू एंड एशियन, हाँ मतलब दोनों के लिए यूएसए पुश फैक्टर था, पर यहाँ पे कोई पुश फैक्टर ही नहीं था। और साउथ एशिया सुपर पावर राइवलरी का एक स्पॉट बन गया वहां पे। अनलाइक अदर रीजन्स वेयर सच ह्यूज असिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, इन केस ऑफ साउथ एशिया रीजनल इंटीग्रेशन टुक्स प्लेस। मतलब यूरोप के कंट्रीज समवॉट सिमिलर से है, साउथ एशिया के कंट्रीज भी समवॉट सिमिलर से है, पर यहाँ पे काफी असिमेट्री देखा जाता है। इंडिया और जैसे बांग्लादेश या भूटान, ये काफी छोटे कंट्रीज है। साउथ एशियन इकोनॉमीज हैव बीन इनवर्ड लुकिंग, हेंस नो स्पेस ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। मतलब सब अपने अपने इश्यूज में फंसे पड़े हैं अलग अलग, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के लिए कोई चांस बनता ही नहीं है। हाँ, वो ये कह रहा है कि अगला पॉइंट कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये थे कभी एक साथ भी थे, पर पार्टीशन के बाद और ये कंट्रीज अभी अभी न्यू है, इसलिए उनको अभी नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। वो अभी अभी एक नेशन एज इमर्ज कर रहे हैं, इसलिए उनको एक ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने में अभी टाइम लगेगा उनको, और एक ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी नेशनलिज्म पीक पे होगा ये न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज के लिए। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा उनमें क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फेस कर रहा है, क्योंकि जो उनका जो टू नेशन थ्योरी था वो 1971 में पूरा फेल होता हुआ दिखा पाकिस्तान को, जब उसके दो टुकड़े हो गए। इसलिए उसको ब्लो ही लगा एक, मतलब एक साउथ एशियन यूनिफाइड आइडेंटिटी होने की वजह से पाकिस्तान को उस पर विश्वास ही उड़ गया पूरा। पाकिस्तान हैज बीन trying to be reorganized as a heart of Asia. Even Sri Lanka tried to be part of Southeast Asia. It said that South Asia is name looking for a place on the map. South Asia is actually a new phrase for the Indian subcontinent which ensures centrality of India। मतलब ये कह रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि वो हार्ट ऑफ एशिया में चला जाए, श्रीलंका चाह रहा है कि वो साउथ ईस्ट एशिया में चला जाए, इसलिए किसका कोई मतलब कुछ स्टेक बचा ही नहीं है साउथ एशिया में सिवाय इंडिया के, कि वो इंडिया की सेंट्रलिटी मेंटेन रखता है, पर बाकी कोई भी कंट्री को साउथ एशिया में कुछ रखा ही नहीं, सब इधर उधर भागना चाह रहे हैं।
foreign policies followed by India towards smaller neighbor has been continuation of British foreign policy. India has been as a bullying big brother, जो नेपाल के ब्लॉकेड में वगैरह दिख जाता है इंडिया का एटीट्यूड. Since integration of Sikkim, formation of Bangladesh, IPKF mission in Sri Lanka, Indian neighbors look at India as an imperialist power. They tend to look towards China as a counterweight. तो ये सब जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है रीजन में, और इसलिए वो चाइना की तरफ झुक रहे हैं कि इंडिया को काउंटर करने के लिए. और इंडिया lacks soft power in the region. India does not differ from other neighbors in terms of governance, human development. In some other contexts, India's performance is worst. मतलब जो भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स और रैंकिंग्स है उसमें कोई इंडिया बहुत अच्छा आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है नेबर्स के कंटेक्स्ट में, काफी चीजों में लैकिंग भी कर रहा है, इसलिए कोई सॉफ्ट पावर है नहीं इंडिया का ज्यादा इस रीजन में. सार्क डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन कंसेंसस इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि कभी इंडिया करता है तो पाकिस्तान ब्लॉक करता होगा, पाकिस्तान करता है तो इंडिया ब्लॉक करता होगा. तो कोई क्वालिफाइड वोटिंग का एक सिस्टम होना चाहिए उसमें. Connectivity is a key to regional integration. So long trust deficit exists between India and Pakistan. SAARC will not be able to achieve the transit agreement, which is crucial. मतलब कनेक्टिविटी तो होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, वही नहीं है इसलिए ट्रेड भी फंसा पड़ा है. फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, तो टनल जो है वो पूरा ब्लैक दिख रहा है और एंड में कोई लाइट ही दिख नहीं है. रीजन क्या है उसका, इस सबसे प्राइमरी और इम्पोर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान के वर्स्ट रिलेशन है, और इंडिया इज फॉलोइंग पाकिस्तान ऑफ सार्क माइनस पाकिस्तान, जो बिम्स्टेक में इंडिया के दिखता है. OPEC becomes a reality. Once CPEC becomes reality, there will be no motivation for Pakistan to have regional integration with South Asia, क्योंकि चाइना से अच्छा खासा ट्रेड होता फिरेगा उससे. और CPEC will transform geography of South Asia, thus the chances are very poor. India has already shifted focus towards BIMSTEC, that is SAARC minus Pakistan. तो पाकिस्तान जा रहा है CPEC की तरफ और इंडिया जा रहा है BIMSTEC की तरफ. However, at present Pakistan is maintaining the ritual to keep SAARC alive. तो पाकिस्तान का क्या मोटिवेशन है SAARC अलाइव रखने का, तो चाइना को घुसाना चाहता है पाकिस्तान SAARC में. Hence, since India is avoiding FTA with China, RCP is uncertain. China's presence in South Asia will appear more legitimate through SAARC. तो चाइना को इन्वॉल्व करना चाह रहा है साउथ एशिया के अफेयर्स में, जो कि उसका फ्रेंडली कंट्री है. What is India's attitude towards China's entry in SAARC? India does not want, obviously, और वो अपने रीजन में वीक हो जाएगा इंडिया, और साउथ एशियन नेबर्स विल गो फॉर बैंड वॉकिंग विद चाइना टू काउंटर बैलेंस इंडिया. इंडिया का रीजनल हेजेमनी खत्म हो जाएगा. तो इंडिया का पोजीशन क्या है कि India is not against expansion of SAARC, but India insists on the consolidation of SAARC. Since China included India in SCO, it becomes difficult for India to oppose China's entry. मतलब चाइना ने SCO में इंडिया को एंट्री दे दी है, इसलिए इंडिया को अभी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है चाइना को अपोज करने के लिए एंट्री. तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स है कि चाइना को अलाउड करना चाहिए क्या. तो ये आर्टिकल में कहा गया कि यस, इट शुड बी अलाउड इन SAARC. तो उसके रीजंस क्या है, एक तो है कि चाइना का ऑलरेडी डोमिनेंस प्रेजेंस है साउथ एशिया में, वो कहीं से छुपता नहीं है, और चाइना अगर SAARC का मेंबर बन जाता है तो वो SAARC फंक्शन भी करना स्टार्ट कर सकता है पॉसिबली, और स्मॉलर जो कंट्रीज है साउथ एशिया की वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करेंगे SAARC की तरफ. साउथ एशिया में बहुत इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, क्योंकि काफी अंडर डेवलप्ड रीजन है वो. फिर भी एक ऐसा भी ओपिनियन है कि चाइना शुड नॉट बी इन द SAARC, और उस वजह से इंडिया विल नेवर एग्री फॉर चाइना's प्रेजेंस स्पेसिफिकली इन नॉर्थ ईस्ट में जो स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में जो कंसर्न्स है, उस वजह की वजह से इंडिया और चाइना में कभी कंसेंसस बन ही नहीं सकता अभी के लिए. तो इवन पाकिस्तान वुड नॉट बी विलिंग दैट SAARC बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ SAARC मीन्स annulment ऑफ पार्टीशन. हाँ, मतलब उनका वही है टू नेशन थ्योरी, और उनका आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा अगर SAARC फिर से रियूनाइट होके एक EU जैसा यूनियन बन गया, तो उनका पर्पज ही डिफीट हो जाएगा पार्टीशन करने का. चाइना वांट्स एंट्री इन SAARC. Since India is avoiding FTA with China, RCP is certain. China's presence in South Asia will appear more legitimate through SAARC. मतलब चाइना वैसे भी एंट्री कर ही रहा है
साउथ एशिया के अफेयर्स में, तो अगर वो सार्क में भी एंट्री करेगा तो वो थोड़ा लेजिटिमेट और एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो मनमोहन सिंह का एक कोट है साउथ एशिया के विजन पे, आई ड्रीम ऑफ अ डे व्हाइल रिटेनिंग आवर रेस्पेक्टिव नेशन आइडेंटिटीज, one can have breakfast in Amritsar, lunch in Lahore, dinner in Kabul. That is how my forefathers lived and that is how I want our grandchildren to live. एक काफी ऑप्टिमिस्टिक उनका कोट है। फिर साफ्ता के ऊपर एक छोटा सा नोट है। हाँ, तो 2004 में इस्लामाबाद समिट में कंट्रीज एग्री करे थे कि साफ्ता 2016 तक बन जाएगा ऑपरेशनल। फिर 1997 में कंट्रीज ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करा था, बट वो कोई ट्रेड में इंक्रीजिंग ट्रेड में रिजल्ट करा नहीं। तो उसका रीजन क्या था कि पॉजिटिव लिस्ट कंसेप्ट, सब्जेक्ट्स इन द पॉजिटिव लिस्ट वर सच विच वर नॉट ट्रेडेड। ये कोई पॉइंट समझा नहीं मुझे। पॉजिटिव लिस्ट कंसेप्ट कोई ठीक है, ट्रेड बैरियर टाइप ही लग रहा है। Why SAFTA? It was US pressure to normalize the relations. ठीक है, साफ्ता तब भी करा गया था जब यूएस से प्रेशर आया था थोड़ा कि नॉर्मलाइज करो रिलेशंस को। तो उसके फीचर्स क्या थे? सेंसिटिव लिस्ट कंसेप्ट था, उसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी था, लिबरल रूल्स ऑफ ओरिजिन थे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोले गए थे साफ्ता में। और इन रिसेंट मीटिंग हेल्ड इन December 2018 at Islamabad, representative from Pakistan included a minister from POK. India had objections, or India diplomat attending the event had walked out of protest, and India demanded the South Asian nations to de-recognize SCCI, SAARC, Chamber of Commerce and Industry. SCCI, one of the SAARC most active bodies. तो ये जो मीटिंग में जो इंसिडेंस हुआ कि इन्होंने पीओके के मिनिस्टर को इनवाइट कर दिया, इसलिए इंडिया वॉकआउट कर दिया और इंडिया अब चाहता है कि इसको पूरा हटा ही दो, ये बॉडी को, एससीसीआई को। तो स्कॉलर्स के व्यू क्या क्या है इस पे, अभी क्या बाकी है? हाँ, ये लास्ट पार्ट है अभी। संजय बारू का व्यू है, उन्होंने बुक लिखा है इंडिया इन द वर्ल्ड, एसेज ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने कहा 3 फैक्टर्स है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को शेप करते हैं। उसमें फर्स्ट है कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होना चाहिए, सेकंड है मूवमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स, और तीसरा है पॉलिटिकल फैक्टर्स। और ये तीनों मिसिंग है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन द केस ऑफ सार्क। इंस्टेड ऑफ ट्रेड डेफिसिट देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। एट प्रेजेंट आउट ऑफ 3 प्रोसेसेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल एंड बिजनेस टू बिजनेस, ओनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑपरेट्स। मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है नहीं, जो भी है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी काफी है। फिर बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी उसी वजह से काफी कम है, और जितना भी है गवर्नमेंट लेवल पर ही है, उस वजह से ज्यादा रीजनल इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। फिर उसे कहते हैं कि हैज बीन नो फ्लाइंग गीस फैक्टर। बीइंग अ गुड नेबर, आर्टिकल बाय इन द हिंदू बाय हैप्पी मॉन जैकब, ठीक है, इनका कोई आर्टिकल है, बीइंग अ गुड नेबर। इंडियाज एटीट्यूड विथ नेबरहुड has not been so good. Delhi considers them irritants and challenges rather than opportunity. हाँ, मतलब इंडिया का एटीट्यूड वही बिग बुलिंग ब्रदर वाला रहा है, इसलिए इंडिया का एटीट्यूड अच्छा नहीं कहा गया है। और दिल्ली उनको इरिटेंट्स कहती है और उनको चैलेंजेस सोचती है रादर देन अपॉर्चुनिटी नेबर्स को। पास से लेसन क्या ले सकता है इंडिया? तो इंडिया मस्ट डील विद ट्रिकी सिचुएशंस इन मोर डिप्लोमेटिक मैनर। जैसे इंडिया ने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में काफी इंटरफेयर करने का ट्राई किया, जो वहां पे बिल्कुल इंडिया के सेंटिमेंट के अगेंस्ट चला गया। फिर नो मिडल विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बाकी कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और न्यू दिल्ली मस्ट नॉट फेल टू फॉलो अप इट्स प्रोमिसेस टू नेबर्स। जैसे इंडिया वही कि इंडिया टॉक्स एंड चाइना डिलीवर्स, तो इंडिया को भी उनके प्रोमिसेस फुलफिल ही नहीं करता है इन्वेस्टमेंट वाले। और देयर इज नो पॉइंट इन कम्पीटिंग विद चाइना,
स्पेशली इन डोमेन्स में चाइना हैज एडवांटेज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करके फायदा ही नहीं है, वो काफी सुपीरियर है हमसे, पैसा भी काफी है उनके पास। इंडिया शुड बेटर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गया, और जैसे अफगानिस्तान में भी हमने डैम बनाया है या उनकी पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया है, ऐसे कर करके हम सॉफ्ट पावर बिल्ड कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा खेल सकते हैं चाइना से कम्पीट करने के बजाय। अब फ्यूचर क्या है, और इंडिया का एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए नेबरहुड का, और वो एक रेटोरिक से अलग होना चाहिए। गोल मस्ट बी a goal must be established and all attempt should reflects march towards such goal, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक होना चाहिए, जैसे मनमोहन सिंह ने काफी अच्छा सजेस्ट किया था, वैसा एक कोई एक होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक आउटलुक। ठीक है, इसमें कोई ऐड करना चाहेगा और कुछ, या अगला टॉपिक उठा ले? सकते हैं अगला टॉपिक। ओके, छोटा सा ही है, कोई भी पढ़ लो। कौन पढ़ेगा, बता दो यार। पढ़ लूं मैं? हाँ पढ़ लो, कोई इशू नहीं। या कितने हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हाँ, मुझे आवाज। ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ अब आ रही है, कंटिन्यू। BIMSTEC, वही बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव। BIMSTEC is India's strategic initiative. Since SARC is not moving because of Pakistan, India aims to eliminate Pakistan and consolidate relations with other South Asian countries. वही SARC -1 वाला approach. Integrate with economically dynamic region of Southeast Asia and replace Pakistan with Thailand. ये गेटवे टू ईस्ट एशिया हो सकता है, और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इंटीग्रेशन इसकी वजह से बढ़ सकता है। और थाईलैंड को पाकिस्तान से रिप्लेस करना चाहता है इंडिया। थाईलैंड पॉपुलेशन साइज भी बड़ा है, मार्केट भी बड़ा है, और थाईलैंड इंडिया के साथ एक्ट मतलब कोऑपरेशन करने में इंटरेस्टेड भी है। BIMSTEC was seen as a bridge between South Asia and Southeast Asia. According to C. Raja Mohan, huge geostrategic significance of BIMSTEC is that it brings India closer to three strategic regions: Bay of Bengal, Mekong region, and Sub-Himalayans. History of BIMSTEC. First established in 1997 with 4 countries: Bangladesh, India, Sri Lanka, and Thailand. Towards the end of 1997, Myanmar joined, and in 2004, Nepal and Bhutan joined it. Presently, it consists of 1.5 billion people, 2.7 trillion GDP, and despite slowdown in global economic growth, economies are growing at a rate of 6.5%. Principles of BIMSTEC. Panchashil. BIMSTEC is an addition to bilateral and other regional cooperation rather than substitute. It has 14 priority areas. Like all Indian initiatives, it has been languishing. However, in recent years, India has realized its importance. During time of Manmohan Singh, Secretariat was established at Dhaka, and Modi has invited BIMSTEC on sidelines of BRICS summit in Goa. Future prospectus of BIMSTEC. Uncertain. Future will depend on future of India-China relations. India's relation with own neighbors like Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh are uncertain. Rohingya issue is a big spoiler. Countries are negotiating FTA, but not वो उसका कोई outcome ही नहीं आ रहा है. Economies are protectionist.
वो तो मार्केट का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, नेदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर फाइनेंशियल। जैसे बाकी हर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का किसी का बैंक बना है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज पुअर एंड थाईलैंड इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी। Sustained efforts by India is needed for BIMSTEC to work. Can BIMSTEC be alternative to SAARC? No. Improvements in relation with Pakistan is a necessity for India's integration with West Asia. तो ये वेस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सार्क का काम करना, वो वर्कआउट करना नेसेसरी है, लेकिन दूसरे एक स्कॉलर है कांति बाजपेयी, वो बोलते हैं कि अगर सार्क काम नहीं करता तो उस पर इंडिया ने रिसोर्सेस खर्च करना छोड़ना चाहिए और बिम्स्टेक पर काम शुरू करना चाहिए। दैट्स इट, खत्म हो गया। ओके, बढ़िया। क्रिएचर सर, आपको कुछ ऐड करना है इसमें या एंड कर दे अभी? सर एंड ही करते हैं तो डिस्टर्ब कर देंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।